And we are live. Great. So, hello everyone. Welcome back to the discussion that we were having last time with Sanan. So today we have Parker with us, and we'll be talking about stock market investments, wealth building, and of course how women can contribute to this, ecosystem and become part of it. I will not introduce Parker. I'll let him do it himself, and then he would like to share some of his findings and insights, and then we'll go through the questions that we have prepared for him. So over to you, Parker. All right, Faida, thank you very much. I'm absolutely thrilled and excited. And this is one of the initiatives that you have taken, which really is going to transform a lot of lives. And let's start by discussing the crux of the things. सबसे पहले खास तौर पर जो कि आपकी कम्युनिटी एक मैसिव विमेन की कम्युनिटी है, the most important thing that we have been able to learn, I would not want to go on a lengthy introduction. We are a financial technology firm. We primarily focus on financial literacy. Our objective is to democratize financial literacy for everybody. We genuinely believe that there is a huge audience in Pakistan जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम financially inclusive हैं. That is to say कि उनके bank accounts हैं, but still a lot of times we end up taking what I would call imprudent decisions for our financial lives. So इस अमर के बावजूद कि हमारे बैंक अकाउंट्स हैं और हम technically speaking financially inclusive हैं, a lot of times we make bad financial decisions that really impact our lives. And there are some of the factors जो कि as a system आपको समझने के लिए बहुत जरूरी हैं. So financial inclusion does not mean financial literacy. That is something you need to understand. So if I have a bank account, I've got 3 bank accounts, that does not mean I'm financially literate. So a lot of girls, women, they go out for the workplace, and men alike, they think that they are financially inclusive, लेकिन कभी फंस जाते हैं because we are not financially literate. So that is the gap that we are trying to solve. So with that lengthy description aside, now focus on important things. I would rather want to address some questions as they come from you. सबसे पहला ख़वातीन के लिए खास तौर पे it's very important क्योंकि आप एक community run करते हैं programmers की and freelancers की. It's very important to value your time. Now we have perceived time in a lot of ways in life. Being a housewife, sometimes value time in a certain way. So as a professional, as a woman, you need to value time as an asset. So number one key lesson, number one that we are trying to focus on today, कि अपने वक्त को असासे की तरह लीजिए. So इस वक्त को जब आप असासे की तरह लेंगे, तो now you will start appreciating कि आप ये वक्त जिसको दे रहे हैं, आया आपका असासा इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी बन रहा है या वो एक्सपेंस बन रहा है या अखराजात में शामिल हो रहा है, जिसके नतीजे में अगर वो इन्वेस्टमेंट बनता है तो मुस्तकबिल में आपको कुछ वक्त के अगेंस्ट रिम्यूनरेशन या बेनिफिट हासिल होने के इम्कानात होंगे. लेकिन अगर वो आपका एक्सपेंस बन जाता है तो वो उसके मुस्तकबिल में आपको कोई नताइज या बेनिफिट हासिल नहीं हो पाएंगे. सो अगेन दैट इज नंबर वन लेसन. If you are a woman, female or even male, focus on this fact कि जो आपका वक्त है, जो आप पैदा हुए हैं दुनिया में, that is an asset for you. Now the next logical question is कि उस वक्त की क्वालिटी कैसी है. So the quality of an asset. So when you are given time, दो लोगों को एक same time अता कर दिया है अल्लाह ताला ने, so you have got same time. Now the next logical question is कि हम इस asset की value किस तरह बढ़ा सकें. Then comes a role that Faiza is playing for her community and you being a woman have to do, because you need to invest that asset into learning a skill. So the next important thing is you need to learn a skill. अभी इस जमाने के अंदर formal education की अहमियत relatively कम होती जा रही है, specifically the tech driven digital world के अंदर, लेकिन स्किल सेट स्पेसिफिकली उन स्किल सेट्स की वैल्यू जो कि आपको बेहतर रिटर्न दे सके, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. सो यू हैव द टाइम एज एन एसेट जो सबको बराबर से मिला है, चाहे आपके बैंक अकाउंट में कुछ है या नहीं है, आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है, आपको वक्त बराबर से मिला है. यू नीड टू इन्वेस्ट दैट टाइम इनटू लर्निंग अ स्किल.
It can be any skill, may it be marketing skill, digital marketing skill, it can be graphic designing, UI UX designing, it can be programming, data science, or any skill. So what you actually do is you combine time with the skill set to develop a skill that has got a higher value in marketplace. Now again I repeat, अपने वक्त को किसी ऐसी सरगर्मी में लगाते हैं और उससे एक स्किल सेट बनाते हैं जो कि आपके वक्त की, लेट से पर आवर आपका रेट है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है. नाउ वही वक्त जो आपको बराबर मिला था, इफ यू कंपेयर दैट विद एनी अदर पर्सन, आपके वक्त की वैल्यू बढ़ती चली गई. सो व्हेन योर टाइम वैल्यू एक्चुअली इंक्रीजेस, then you go out in the marketplace to sell that skill or sell that asset, which is your time, that is again at the hourly rate. So when you sell that time, you fetch a higher income that has got money, that's what we call money and remuneration. So up till now the key lesson जो कि हमने सीखा है, खासतौर पे खवातीन को देखना चाहिए इसको, कि आपका वक्त फ्री नहीं है. आपके पास एक एसेट मिला है, आपको उस एसेट को इन्वेस्ट करना है कोई स्किल सेट सीखने में, ताकि उस वक्त की कीमत बढ़ा सकें और वो पूरी एक्टिविटी आपकी एज एन इन्वेस्टमेंट बन जाए. बिकॉज अपने वक्त और मेहनत को किसी काम में इस उम्मीद के साथ जब आप लगाते हैं कि मुस्तकबिल में आपको उससे कोई फायदा हासिल हो, दैट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू नीड टू लर्न हियर इज you need to convert your time into productive activities, ideally learning a skill set so that you can convert the time into an investment. So ये आपको एक scarce resource जो मिली है वक्त की, assuming कि आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, you've got no savings right there, you get an asset now. So asset building का पहला lesson is very important for everybody, कि आपको lesson मिला है कि आपने skill set build करनी है हर सूरत. So a lot of times आई एम अप्रोच्ड बाय पीपल कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कैसे प्रॉफिट कमाएं. भाई आपके पास वक्त है, आप उस वक्त की अहमियत को जानिए, उसको कन्वर्ट करें स्किल सेट के अंदर. चाहे आप हाउस वाइफ हैं, यू वर्किंग समवेयर, एवरी डे फोकस ऑन एनहांसिंग दैट स्किल सेट, व्हाटएवर इट मे बी, बट इट हैज टू बी फोकस्ड अपॉन वेरी केयरफुली, मेटिकुलसली, ताकि आप उसको स्किल सेट बिल्ड करें. यू बिल्ड दैट ओवर टाइम, लाइक you don't do it overnight, you build it over months and quarters and years. But once the quality of time increases, then you go out and sell that skill in the marketplace. Now the next important question is, so if you are with me up till now, and if you have any question, just drop me a message. But if you are good to go, हमने एक बहुत ही important lesson learn किया. So we all start with the time as a raw asset, and we convert that into a skill set, sell it out in the marketplace and earn the income. Now we've come to a point कि जहाँ पे हमें कुछ आमदनी हासिल होना शुरू हो गई है. Now let's understand some of the hard facts about the financial system, जो कि मैं आसानी से समझाऊंगा आपको without making it a bit more boring. So सबसे बड़ा फैक्ट, जब आप अपना पैसा सेव करते हैं और अपने पास बचाते हैं, अपने एक्सपेंसेस से कुछ रखते हैं अपने पास, एंड ये समझते हैं कि मैं इसमें रिस्क ना लूं, मैं अपने आप को डी रिस्क करूं. डी रिस्क होने वाले लोग ग्रो नहीं कर पाते, नंबर वन, ओवर द लॉन्ग टर्म. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट. सो इफ यू डी रिस्क योरसेल्फ, मुराद ये कि सबसे आसान ऑप्शन, एक इसको आसानी से बताता हूं, यूजुअली सबसे आसान ऑप्शन जो आपको दिखता है आपके पैसे को रखने के लिए, वही आपको नहीं लेना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो सबसे आसान ऑप्शन क्या होता है कि बैंक्स में करंट अकाउंट में रखो पैसे. दैट्स समथिंग यू डोंट वांट टू डू. उससे थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन होता है, पुट दैट इनटू अ सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट जो 4 to 5% आपको देता है. दैट इज आल्सो यू शुड नॉट वांट टू डू. उससे मुश्किल ऑप्शन होता है प्रोबब्ली गो फॉर टीडीआर एंड थोड़े से 6-7% के इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा पार्क करें और कमिट करें पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए. अगर नहीं होता तो बैंक आपको उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है इफ यू विड्रॉ अर्ली और प्रीमेच्योर विड्रॉल आप करते हैं तो. दैट इज आल्सो यू डोंट वांट टू डू, ऑल्दो इट लुक्स लिटिल मोर लाइक अ टफर ऑप्शन, बट ये भी नहीं करना चाहिए. नाउ व्हाट शुड वी डू? सो एज अ प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखें कि कम अज कम, बिकॉज आपके जो पैसे हैं कम अज कम उसको
इतना बढ़ना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 1 ईयर, कि उस दौरान जो आपके मुल्क के अंदर जो पैसे की कदर गिर रही है उसको मैच कर सके, दैट इज इन्फ्लेशन। सो एक जानिब आपके रखी हुई सेविंग्स को बढ़ती हुई कीमतें उनकी जो वैल्यू है वो गिरा रही हैं, बिकॉज आप अगले साल एंड में उन्हीं पैसों से उन्हीं अशिया को जब लेने जाएंगे तो आपको वो कम मिलेंगी अशिया। सो आपके इस पैसे की अहमियत कम होती जा रही है। सो द मिनिमम यार्ड स्टिक और बेंचमार्क that you need to ask any bank or financial institution that you go out to when they are offering you the return is that कि पिछले साल की या पिछले 2 साल की एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है, क्या महंगाई का तनासुब रहा है, और आप क्या उस महंगाई के तनासुब से ज्यादा इंटरेस्ट रेट या रिटर्न रेट ऑफर कर रहे हैं विदाउट मी टेकिंग एनी रिस्क। दैट्स अ बेस लाइन। So that's the next logical question that you need to address right now. क्या आप उस इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? So it's a very clear question. A large majority of financial institutions are offering less than that. And उसकी एक वजह है. So big financial institutions, what they actually do is कि आपसे वो सस्ता पैसा लेती हैं कम इंटरेस्ट रेट पे और उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आगे लैंड करती हैं। रिस्क फ्री लैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। रिस्क विद रिस्क तो प्रीमियम लैंडिंग जो प्राइवेट सेक्टर को करते हैं वो और ज्यादा करते हैं, बट उसमें उनका रिस्क होता है। लेकिन जो रिस्क फ्री लैंडिंग होती है जिसमें उनको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, जो कि यूजुअली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री जो कि बहुत ज्यादा जिसपे डेट बर्डन है, वो यूजुअली गवर्नमेंट उधार लेती है। सो गवर्नमेंट उधार लेती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको एक रेट ऑफर करते हैं, आपको वो रेट देते हैं और खुद गवर्नमेंट को उधार देते हैं हायर रेट पे। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? और वो जो हायर रेट होता है वो यूजुअली क्लोज टू डिस्काउंट रेट होता है, और डिस्काउंट रेट करीब करीब लॉन्ग टर्म में महंगाई की शरह को मैच करने की कोशिश करता है। सो अगर वो डिस्काउंट रेट महंगाई की शरह को मैच करने की कोशिश कर रहा है और बैंक आपको कम दे रहे हैं, तो दैट इज टू से जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इटसेल्फ आपको नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। मतलब ये कि हकीकी मायनों में आपको गरीब बना रही है कोई भी मालियाती इदारे की वो प्रोडक्ट जो कि इन्फ्लेशन रेट के करीब आपको रिटर्न नहीं दे रही है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। सो नंबर 1, व्हेन यू गो टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट है, सो इंटरेस्ट रेट क्या इन्फ्लेशन को मैच करे, दैट्स द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इट। सो अगर तो इन्फ्लेशन के करीब करीब ला सकते हैं तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू मैच योर इंटरेस्ट रेट और रिटर्न रेट रिस्क फ्री क्लोज टू इन्फ्लेशन। इफ इट इज मोर देन दैट, दैट इज वंडरफुल, बट इफ इट इज लेस देन दैट, इट मींस कि आप इम्प्लिसिटली अज्यूम कर रहे हैं कि आप अगले 1 साल में हकीकी मायनों में गरीब होने के लिए तैयार हैं, बट नॉमिनल टर्म्स में आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ठीक है मुझे ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड आई एम लुकिंग forward to it and I'm happy about it, but real terms में you are actually getting poorer. So ये general equation है जो हर कोई हम में से adopt करता है most of the times। बैंक अगर आप देखें बेसिकली सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स हैं, अगर स्टेट बैंक की स्टैट्स निकालें तो एक वास्ट मेजॉरिटी जो है वो बैंक्स का इसी तरह के बुनियादी सब पार रिटर्न वाले सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, एंड दैट इज वेयर दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं। सो बुनियादी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मैच इन्फ्लेशन विद द इंटरेस्ट रेट दैट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, let me go on and just compare some of the interesting return profiles with you so that you can get some more perspective into that. All right, Faiza, do we have some question, or we like take it to the next comparison part? Nani, go ahead and take it. I'm just noting questions down, so I'll ask them at the end. Good, good. All right. So अब चले हमें ये समझ में आ गया कि बुनियादी सवाल as a women or as an individual आपको क्या पूछना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर आप मुझे रिस्क फ्री ऑफर कर रहे हैं, क्या वो इन्फ्लेशन से कम है, ज्यादा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट यू नीड टू लर्न अबाउट इट। अगर आप इतनी आगाही भी रख लेंगे तो आपको ये बुनियादी अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं हकीकी मायनों में आया गरीब होने जा रही हूँ या अमीर होने जा रही हूँ।
because it's a very hard earned money. Remember the first part that we learned the first part जिसमें आप ये skill set build करके you develop that income, and when you develop that income उसमें expenditure बढ़ रहे हैं inflation की वजह से, वो बढ़ रहे हैं, एक तो ये नुकसान, दूसरा आपका जो सेविंग आ रही है उसमें भी इन्फ्लेशन हर्ट कर रही है, उसकी वैल्यू भी गिर रही है, दूसरा नुकसान. So it's like the two problems that we have to solve here. So now अब देखते हैं मुख्तलिफ स्कीम्स के बुनियादी रिटर्न्स को किस तरह से हम मैच कर सकते हैं, और उसमें कुछ हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको भी जरा अंडरस्टैंड करते हैं. दैट्स अ 20-year पीरियड जो कि हमने देखा है, जिसमें हम बहुत ही पॉपुलर पाकिस्तान में जो स्कीम्स हैं उनके नॉमिनल और रियल रिटर्न्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या पर्सपेक्टिव हमें मिल सकता है. सो लेट्स सी. So, Faida, is it now on the screen? Yes, it is. All right, good. So, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने अगर 1 लाख कैश में रखे थे या 1 लाख आपने अगर गोल्ड में रखे थे, तो how did it work out? Because for women, gold is generally considered a very safe asset. So now we're talking about nominal, inflation से minus करके. Inflation अभी हम account for नहीं कर रहे कि बस हमने डाला, अभी हम inflation rate minus नहीं कर रहे. तो नॉमिनल टर्म में आपका लाख ही रुपए रहेगा, बट जो गोल्ड में रखा था वो आपको एवरेज 10.4% रिटर्न देगा. अगर आप देखें पिछले 20 साल का रिटर्न, तो एवरेज 10.4% रिटर्न दिया नॉमिनल टर्म्स में गोल्ड ने, और अगर कम्युलेटिव रिटर्न देंगे तो 584% रिटर्न. सो इट लुक्स लाइक अ बिग रिटर्न. क्या ठीक है, लेकिन ये 20 साल का पीरियड है. 20 साल इज जनरली कंसिडर्ड अ बिग पीरियड, जहां पे अगर आप अर्ली स्टेज में जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दें, तो एट द एंड ऑफ दैट पीरियड यू गेट अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ. Now let's make it a little bit more interesting. अगर हम यही ग्रोथ देखें रियल टर्म्स में, सो इन्फ्लेशन अब अगर असर अंदाज हो जाए, इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि चीजें भी महंगी हो रही है पिछले 20 साल में, अगर 2000 से लेके हम यहाँ पे 2020 के अराउंड देख रहे हैं रिटर्न्स, तो अब अगर आप देखें तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे. जो ब्लैक लाइन है दैट्स अ कैश रिटर्न, एंड देन गोल्ड रिटर्न की ग्रीन लाइन है. So you would be surprised that total cumulative return is just 43%. So 43% gold real terms में appreciate हुआ. Real terms में I'm talking about. So every year you deduct the rate of inflation there. So जो 1 लाख आपने लगाए थे वो 142,893 रुपीज हो गए. जबकि अगर आपने कैश में वो पैसे रखे थे सेव और अपनी अलमारी में डाल दिए थे, तो 20 साल बाद हर साल वो 8% से गिरते रहे. 8% से उनकी रियल टर्म्स में वैल्यू गिरती रही, और 20 साल बाद उनकी जो रियल टर्म में वैल्यू रही वो 17,692 रुपीज रही. तो ऑलमोस्ट आपकी वेल्थ वाइप ऑफ हो गई. सो इन्फ्लेशन ने ओवर द लॉन्ग रन, अगर आप ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेंगे कि आपको किस तरह प्रोटेक्ट करना है अपनी सेविंग्स को जो आपने कमाई है स्किल सेट से लर्न करके, अगर ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आप नहीं लेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप you can wipe out your entire wealth that you generate over time. So it's a very critical, important decision that you need to take as early as possible. Now let's move forward. अब देखते हैं नॉमिनल और रियल ग्रोथ अगर बेसिक सेविंग अकाउंट में रखते हैं. नाउ बहुत सारी खवातीन बोलती हैं कि मैंने बेसिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए 4 से 5% इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है मुझे, एंड आई एम हैप्पी विद दैट. सो व्हाट हैपेंड टू दैट? 20 साल में अगर 1 लाख रुपए डाले थे तो 44,521 रुपीज रह गए आपके. नाउ ये रियल टर्म्स में है. हकीकी मायनों में आप जो अगर हकीकी मायनों में देखें तो 44,000 रह गए रियल टर्म्स में. अगर आप देखें कि नॉमिनल टर्म में देखेंगे, हाँ ठीक है यार मैं इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर नहीं करता, तो आप खुश हो रहे होंगे बेसिकली कि 2,32,200 हो गए, एंड यू विल बी रियली हैप्पी. और आप देख रहे होंगे ये एवरेज 4.39% रिटर्न मिल रहा है हर साल. दैट इज व्हाट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेल्स यू कि यार आप अगर बैंक में पैसे रखेंगे तो सेविंग अकाउंट में रखें, और वेटेड एवरेज जितने भी दिन आपका पैसा इतना रखा रहेगा उसके हिसाब से आपको हर महीने इंटरेस्ट देंगे, एंड यू थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड इट इज गॉट लाइक 4.39% इंटरेस्ट रेट, और मैं अगर एक्यूमुलेट करूं 20 साल में तो 132% हो गया है. जबकि उसमें से अगर इन्फ्लेशन निकाल दी जाए, जब उसमें से इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, तो आपको 20 साल में जो वन ऑफ टोटल रिटर्न मिला है वो -55% है, और एवरेज रिटर्न हकीकी तौर पे हर साल आप 3.63% से गरीब होते जा रहे हैं. एंड व्हाइल यू थिंकिंग कि हम बैंक्स में पैसा रख के
बेसिक सेविंग अकाउंट में हम अमीर हो जाएंगे. So that's another reality that you need to live with. So when you look at अपने पोर्टफोलियो को अपनी बैंकिंग स्कीम्स में या फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज को देखें, एंड दिस इज द सिमिलर केसेस विद द इस्लामिक बैंक. इस्लामिक बैंक के प्रॉफिट रेट्स भी अराउंड यही रेट्स पे होवर करते हैं, एंड समटाइम्स उससे कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, यूजुअली कम होते हैं. All right, so let's talk about some interesting facts with some nominal and real growth of 1 लाख रुपए, जो कि अगर रियल एस्टेट में DHA कराची में अगर आपने डाले होते. So there is like a very good decent looking graph that you now see कि नॉमिनल टर्म्स में अगर आपने 1 लाख डाले थे रियल एस्टेट प्लॉट पे और एवरेज वो 17% से बढ़ा हर साल, तो टोटल रिटर्न 2211%. So pretty good for the big housing schemes that you invest in. बट रियल टर्म्स में देखें तो यू विल बी सरप्राइज कि क्योंकि इन्फ्लेशन भी आ रही है, तो ऑन एवरेज आपके पैसे 8.98% से बढ़े रियल टर्म्स के अंदर. सो रियल रिटर्न इज अगेन like it is above like a positive 8% or 9% real rate of return that you're getting, but it's only like DHA Karachi example, and the return figure has been taken from DHA Karachi, a top professional who is dealing with the investments there. All right, अब देखते हैं कि 1 मिलियन आपका अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, जबकि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे ग्रो होता. एंड रियल एस्टेट के लिए हमने ज़मीन.com का प्लॉट इंडेक्स लिया है कि प्लॉट्स की जनरली ऑन एवरेज कीमतों का अशारिया पिछले 10 साल का ये है कितना ग्रो हुआ है. सो यू सी दैट ब्लैक लाइन, दैट इज द रियल एस्टेट इंडेक्स लाइन. तो अगर आपने 1 मिलियन डाले होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती और क्राइसिस के टाइम पे बरकरार रहती, एंड देन जब ग्रोथ आती तो बढ़ती रहती. जबकि KSE 100 इंडेक्स या फिर इक्विटी मार्केट्स का एक जो रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है, अगर उसमें डाल दिए होते, अगर उसमें उसी शरह से डाल दिए होते जिस शरह से उनमें कंपनीज यकजा की गई हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आती. So you see a lot of volatility from here. The investment is declining, then recovering, then declining, and then recovering. So जो ग्रीन लाइन है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब दिल ज्यादा धड़केगा उसमें इन्वेस्टमेंट डाल के. एंड जो ब्लैक लाइन है उसमें स्मूथ लाइन है. अगर आपने सही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जनरली ग्रो होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट जो ग्रीन लाइन है इसमें आपको व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द रिस्क. रिस्क इज it's a volatile investment, and if you invest for long run, और जो ये करेक्शंस आ रही हैं इनका फायदा उठाएं, how do you benefit out of that. जब मार्केट्स गिरे तो थोड़े थोड़े पैसे सिस्टमैटिकली डाल दें एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें, डाइवर्सिफाई अक्रॉस टाइम, तो आप निस्बतन दूसरी एसेट क्लास से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. एंड नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट देखते हैं कि 1 लाख का फिक्स इनकम में अगर 5 साल से अबव आप जो बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं उसमें रखते हैं, जिसमें अगर आप जाते हैं बैंक्स के जरिए TDR बुक करा दिए, आप 5 साल के TDR बुक करा दें, तो क्या उसमें फिक्स डिपॉजिट में आपको रिटर्न मिलता. सो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, नॉमिनल फिक्स डिपॉजिट रेट है आपका 5 साल से ऊपर की मुद्दत के लिए अगर आप बुक कराएंगे 1 लाख रुपए, तो वो आपको 343% 20 साल में देगा और एवरेज सालाना 7.85% देगा. नाउ यू रियली गेट एक्साइटेड कि यार दिस इज अ गुड नॉमिनल रिटर्न. लेकिन अमूमी तौर पे बहुत सी खवातीन और मर्द हजरात अलाइक हम लोग इन्फ्लेशन के फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं व्हेन वी आर मेकिंग की फाइनेंशियल डिसीजंस इन लाइफ, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. सो अगर आप उस रियल इंटरेस्ट रेट को देखें उसके, तो वो नेगेटिव है, 0.16% नेगेटिव है. और अगर टोटल रिटर्न देखें तो टोटल रिटर्न आपका -10% नेगेटिव है. अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम वी डू, जब हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम मंथली इनकम में डाल के करते हैं. जब हम मंथली इनकम भी उसमें डाल देते हैं तो हम पैसे निकाल भी रहे होते हैं. सो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज कि हम पैसे प्रॉफिट निकाल भी रहे हैं और हमारा कैपिटल ग्रो भी नहीं हो पा रहा और इन्फ्लेशन भी हिट करती जा रही है. सो द डबल प्रॉब्लम इज कि आप ग्रो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे हैं,
आप एक्चुअली हैं यहाँ पे और उस पे भी आप मंथली इनकम निकाल लेते हैं, तो आप और डबल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बिकॉज आपका प्रिंसिपल ग्रो नहीं होता, पूरी इन्फ्लेशन आपको हिट करती है। सो जनरली जो रूल ऑफ द थंब होता है लोगों को, क्या मंथली इनकम में डाल देंगे, पैसे बनाएंगे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देंगे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ डाल के आराम से बैठ जाएंगे। तो रियल टर्म्स में बाय द टाइम दे रियली रिक्वायर दैट मनी, उसकी रियल वैल्यू कम हो चुकी होती है अच्छी खासी, इफ यू ड्रॉ मंथली इनकम फ्रॉम दैट एज वेल। So now let's see another, let's go for the 10-year PIBs. So 10 साल के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट के डिस्काउंट रेट को टारगेट करते हैं, वो क्या आपको ऑफर करते हैं। सो व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन नॉमिनल बेसिस, 1 लाख रुपया 10 साल के 20 साल की मुद्दत के लिए डाल दिया आपने, एंड व्हेन यू लुक एट द इंटरेस्ट रेट, आपको सालाना ऑन एवरेज जो है वो 10.29% मिला है 20 साल के ऊपर अगर आप एवरेज करें तो। रियल टर्म्स में एवरेज रिटर्न इज 2.27%. सो हकीकी मायनों में, नाउ वी टॉकिंग अबाउट सम सीरियस पीपल, विमेन एंड मेन अलाइक, जो कि प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं एंड दे ट्राई टू हिट द इन्फ्लेशन रेट। करीब करीब भी जब आ जाते हैं तो आप औसतन 2.27% से ग्रो हो रहे हैं रियल टर्म्स के अंदर। सो दैट इज द मार्जिन यू हैव व्हेन यू इन्वेस्ट इन पीआईबीज इन रियल टर्म्स, के आप इतना ग्रो हो जाएंगे, इन्फ्लेशन से 2.27% ज्यादा रिटर्न औसतन कमा लेंगे। एंड दैट इज इट, व्हाइल यू आर अज्यूमिंग कि हम जो है वो एवरेज कमा रहे हैं ओवर द 20 years 10.29%। ऑल राइट, सो नाउ अब थोड़ा सा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट देख लेते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं और नेशनल सेविंग्स इसको इजरा करती है। अगर इसको एसएससी की, अगर आप इस सेविंग स्कीम से देखें, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की, और देखें कि 20 साल में अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप एवरेज रिटर्न आपका 10.44% था, एंड रियल रिटर्न इन्फ्लेशन को माइनस करके 2.43%। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इवन नेशनल सेविंग स्कीम की, स्पेशल सेविंग स्कीम में भी, पीआईबीज के अंदर भी, फिक्स डिपॉजिट पीआईबीज गवर्नमेंट के क्लोज भी जब जा रहे हैं तो आप 2% से 3% के दरमियान रियल रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हैं, इन्फ्लेशन को माइनस करके भी। अगर आप ये ऑप्टिमल चॉइसेस भी ले रहे हैं इन लाइफ, सो यू हैव टू कीप इन माइंड के अर्निंग अ रिस्क फ्री रिटर्न will only like give you a margin of 2 to 3% on gold, national savings, PIBs, तीनों में अगर आप करें तो 3% से ज्यादा मार्जिन आपको मिल नहीं रहा on over the long term, even if you're making a prudent financial fixed income decision. That's why I earlier said कि जब भी आपको de-risk हो जाएंगे आप, तो आपको growth hamper होगी when you de-risk yourself. All right. So now we see nominal and real growth of KSE 100 index. So now when you see the average return of KSE 100 index, अगर आप nominal देखें inflation को minus किए बगैर, so you see 24.57%. That's a high return. But when you see a real return inflation को minus करके, that is around 16.40% over the period of past 20 years. So minus inflation around 16.40% over the long period you can earn. So other investment schemes will take you down to 2 to 3% जब आप उसमें रिस्क लेंगे। एंड व्हेन यू टेक द रिस्क, जब अपने आप का जो आपकी फिलॉसफी थी कि मैं अपने आप को रिस्क की इंस्ट्रूमेंट्स में जाऊं और लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफाई करूं, टाइम बेस्ड, व्हेन यू हैव टाइम, ओनली देन इट विल वर्क, व्हेन यू हैव टाइम ऑन योर साइड। व्हेन यू डोंट हैव टाइम, दैट इज वेयर यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। सो नॉमिनल एंड रियल रिटर्न, नाउ देयर इज अ फाइनल राउंड एंड यू लाइक अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मैंने आपको बता के दे दी है। When you see a lot of investment instruments out there, जो हमारे सबके फेवरेट है नीचे बेसिक सेविंग स्कीम, वो सब हमें गरीब बना रहे हैं रियल टर्म्स के अंदर। So only the real estate is leading up at the top, and then the equity markets are leading up at the top. So real estate, equity again, it's a very volatile market. You need to invest for long term, diversify, invest for long term, do systematic investing, और क्राइसिस का फायदा उठाएं। These are the important things that you need to go. Otherwise, like real estate is giving you a smooth long-term growth of capital there. So now you see inflation-adjusted return. So when you see inflation-adjusted return, तो आप देखिए कि real terms में आप बहुत सारी जगहों पे गरीब होते जा रहे हैं। And then you see equities में huge volatility, 2008 की क्राइसिस की वजह से आप देख रहे हैं कि the investment decline and then gradually recover. So there, if it goes there,
you need to buy into the market when there is crisis and do systematic investing over the long term. So अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट में सेविंग्स है और आप ओवर द लॉन्ग टर्म ETFs बाय कर सकते हैं, इंडेक्स को बाय कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बाय कर सकते हैं, देन यू टेक एन एडवांटेज ऑफ इक्विटी मार्केट्स. अगर आप बिग टिकट साइज इन्वेस्टर हैं तो रियल एस्टेट इज आल्सो अ वायबल ऑप्शन फॉर यू. So now we've come to a very important conclusion कि हमेशा इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट करके सब चीजें देखनी है. The first question you need to ask from the financial institution is कि भाई इन्फ्लेशन क्या है ये बता दो और खुद भी चेक कर लें, और क्या ये जो स्कीम है ये इन्फ्लेशन से ज्यादा दे रही है कम दे रही है. अदरवाइज आप बाईपास करके गवर्नमेंट की उन स्कीम्स में जाएं जो आपको इन्फ्लेशन के करीब करीब रिटर्न दे रही है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल डिनोमिनेशन T-bills, और डायरेक्टली यू कैन पार्टिसिपेट नाउ. अब आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर और डायरेक्टली डिस्काउंट रेट के करीब इंटरेस्ट रेट लॉक इन कर सकते हैं जो आपका पैसा लेके मालियाती इदारे कर रहे होते हैं और बीच में स्प्रेड कमा रहे होते हैं. यू कैन डू दैट योरसेल्फ एज वेल. सो दिस इज द कोर लेसन दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू लर्न. एंड देन अगर आप लॉन्ग टर्म में छोटा छोटा सेव कर रहे हैं तो और सिस्टमैटिक प्लान बना रहे हैं लॉन्ग टर्म का, तो इक्विटीज इज अनदर ऑप्शन कि आप बाय करते रहें हर लेवल्स पे, नीचे जाए बाय करें, नीचे जाए बाय करें, ऊपर तक लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 years अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें एंड देन मूव फॉरवर्ड विद दैट. आई थिंक दैट सम्स अप अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. हम ज्यादा लेसन नहीं, I'll quickly go and would love to take your questions. Thank you so much, Bakar. I think it was really important for all of us to understand जो स्पेशली जो इन्फ्लेशन रेट वाली बात है और स्पेशली जो अभी कंडीशन है हमारी मुल्क की विद अ रियली रियली हाई इन्फ्लेशन रेट एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? देखें, अभी हर इकोनॉमी को आपको देखना होता है. हर इकोनॉमी स्विंग जो साइकिल से गुजरती है. अब अगर आप देखें तो आप एक साइकिल के बॉटम के करीब करीब हैं. ये साइकिल का बॉटम हमेशा आपको 4 से 5 साल के बाद इकोनॉमी में आता है. सो इंट्रिंसिकली इकोनॉमी आपकी थोड़ी वीक इसलिए है कि आपकी इकोनॉमी रेंट सीकिंग इकोनॉमी है. उससे मुराद ही मैं जनरली आपको बताता हूँ. आपकी इकोनॉमी उधार लेती है और उसको इम्प्रूडेंटली खर्च करती है. इन्वेस्टमेंट्स कम है, इन्वेस्टमेंट की शरह और सेविंग रेट आपकी इकोनॉमी में बहुत कम है. लोग करंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं, और जो सेव करते हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन में या फिर कंपनी बिल्डिंग में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आ पाता. तो ये एक इंट्रिंसिक वीकनेस है. एंड देन टैक्सेशन जो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो सर्टन सेक्टर्स से इकट्ठा करती है, सर्टन सेक्टर्स को छूट दे देती है. तो वहां टैक्सेशन के लूप होल्स हैं. तो लोग अपना कैपिटल उन इनएफिशिएंट सेक्टर्स में ले जाते हैं और वो कैपिटल एफिशिएंट सेक्टर्स में नहीं लग पाता, जिसकी वजह से वो सेक्टर ग्रो नहीं कर पाते. इसी वजह से आपकी इकोनॉमी इंट्रिंसिकली वीक रहती है. प्लस सर्टन सेक्टर्स के अंदर खासतौर पर जिसमें एनर्जी है, सस्ती बिजली और गैस और सस्ती एनर्जी और प्रोडक्टिविटी फैक्टर जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी में, उस पे पैसा नहीं लग पाया और वो उधार पे ले लिया गया और उधार पे ले लेके उसके उधार चुकाने के लिए और उधार ले लिया गया. और फिर एक चूंकि आप एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं और ऑयल इंपोर्ट करती हैं, तो जब भी ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और आपके रुपए की कदर गिरती है. 3-4 इंपॉर्टेंट बड़ी वीकनेसेस और रियलिटीज हैं. इन तमाम तर रियलिटीज को अगर आप देखें तो ये प्ले इन करती हैं पिछले 25-30 साल में सेम तरीके से प्ले करती हैं, जो आपको इकोनॉमी में हर 4-5 साल के बाद एक डिक्लाइन देते हैं और उस पे सोने पे सुहागा होता है आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. दैट जस्ट इज द आइसिंग ऑन टॉप ऑफ द केक. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जब वो क्राइसिस आता है तो आपको हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो, हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ सिनेरियो पे चले जाते हैं. और जब भी आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाती, फौरन डिक्लाइन हो जाती है. तो इन रियलिटीज में रहते हुए आप अक्सर इन सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जैसे जिसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है और उसमें लो ग्रोथ है. नाउ लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन में आपको किस तरह एडजस्ट करना है, दैट्स लॉजिकल क्वेश्चन. नाउ जब इकोनॉमी क्राइसिस में होती है तो कुछ एसेट क्लासेस बहुत सस्ती होती हैं. लेट्स से इक्विटीज जनरली सस्ती हो जाती हैं जब क्राइसिस पीक पे होता है. सो बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जब क्राइसिस बहुत पीक पे होता है तो इक्विटी सस्ती हो जाती है.
एंड अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, आपने टाइम डाइवर्सिफाई किया हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप थोड़ा थोड़ा एवरेज करें इक्विटीज के अंदर, ठीक है। लेकिन एक वो ये भी वो टाइम होता है कि जब फिक्स इनकम के रेट ज्यादा होते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है। आप देखिए अभी डिस्काउंट रेट बढ़ा हुआ है और ये तमाम फिक्स इनकम के रेट ज्यादा है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये जो रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा है, तो आप हकीकी मायनों में हो गरीब ही रहे। When you're running for the fixed income in the short term कि मैं बुक कर लूं, तो आप हकीकी मायनों में डिसीजन लें कि मैं गरीब हो जाऊं एक्चुअली, सही है। सो बट द क्वेश्चन इज, ये इससे बेहतर है कि आप कैश में रखें, और ये इससे भी बेहतर है कि आप खर्च करें उसको लग्जरियसली। तो लग्जरीज को यू नीड टू ब्रिंग इट डाउन। पैसे को अगर आपका आउटलुक लॉन्ग टर्म के लिए है, तो सिस्टमैटिक रिस्की एसेट क्लासेस बिकम चीपर इन क्राइसिस, सो यू बाय देम विद अ स्मॉल डिनोमिनेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर, वो अपनी एज एन इंडिविजुअल इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में नाकाम हो जाते। दैट्स अ बिगर क्वेश्चन टू एड्रेस देन फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नैलिटी, जो इकोनॉमी की एक्सटर्नैलिटीज है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी स्किल सेट, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोफेशन, उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, so that investment yields higher return at any point of time. So if somebody asks me that I've got no money, where should I invest? Invest on your skills. Invest every single hour on learning a new skill. Invest in that, increase the value of your time. आपने अपने वक्त की वैल्यू बढ़ा देंगे आप, क्योंकि आप अब ग्लोबल मार्केट प्लेस में हैं, so you can increase the value of time and sell it to somebody who is outside of the country. Build a brand, sell it to somebody who is outside the country, and increase higher income. Earn dollar denominated income. When you earn dollar denominated income, you already get a hedge against inflation and devaluation. So you need to focus, जो खवातीन खासतौर पर टेक इंडस्ट्री के अंदर हैं, they need to focus on this opportunity, because ये एक ऐसी इनकम है जो कि अगर डॉलर डिनोमिनेटेड है तो आपको डिवैल्यूएशन से ही प्रोटेक्ट करती है, इन्फ्लेशन से ही प्रोटेक्ट करती है। सो दोनों चीजों से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं अगर आप अपनी ग्लोबल मार्केट प्लेस में वर्थ बढ़ाएं और अपने टाइम को स्किल सेट में इन्वेस्ट करें। अच्छा, इस तरह की स्किल सेट की जो प्राइस है, वो प्राइस भी रिड्यूस हो रही है, तो आपका उन पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसों का जो खर्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है उन चीजों को लर्न करने की, वो भी रिड्यूस हो रही है। तो आपके लिए तो ये डबल एडवांटेज है कि आप इस पे फोकस करें, बिकॉज वंस यू इंक्रीज द इनकम सोर्सेज, फोकस ऑन द कोर इनकम सोर्सेज, देन आप फिर सेकेंडरी इनकम एंड देन थर्ड इनकम की तरफ जाते हैं, साइड हसल्स की तरफ जाते हैं। बट कोर अपनी जो इनकम सोर्स है उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करें, उसको ग्रो करें, एनरिच करें और उस पर फोकस करें, बिकॉज इवेंचुअली दैट विल प्रोटेक्ट। साइड की सेविंग्स इज जस्ट अ क्वेश्चन कि आपको प्रोटेक्ट रखेंगी। देन कपल ऑफ डिसीजंस लाइक अ डिसीजन टू हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योरसेल्फ, covering yourself against unexpected risk, that is also a very good safeguard अगर कोई नागानी आती है खुदा ना खास्ता। तो coupled with that you can go out of the crisis, you can convert the crisis into an opportunity, because crisis के अंदर चीजें कुछ इन्वेस्टमेंट सस्ती हो जाती हैं। तो you need to look at the positive side of the things, and आपको क्योंकि आपके खराजात और महंगाई महंगी हो रही है, तो you only focus on one side, but you don't focus somehow on the earning capacity side. राइट, एब्सोल्युटली। कुछ क्वेश्चंस हैं फेसबुक के ऊपर, मैं देख रही हूँ। सुगरा का कमेंट है, सलाम, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, कैन यू शेयर हाउ टू लर्न which equity market to put money into? I think she wants to know more about equity market investment. Sure. देखिए आप इन्वेस्टर्स लाउंज की प्लेटफॉर्म पे जाइए, विल गिव यू एन स्कॉलरशिप। आई थिंक सैन मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इट। तो आपके जितने भी प्रोग्राम वाले विल गिव यू अ कोड, यू कैन गेट लाइक 2 to 3 months स्कॉलरशिप। और जो बेसिक इक्विटी का इन्वेस्टमेंट का कोर्स है और एक मनी माइंडसेट का कोर्स है, विच आई वुड लाइक एवरीबडी टू डू, जो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, वो आप 2 कोर्स करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। दैट इज ऑल फ्री, आई विल डू दैट एंड यू कैन अप्रोच फाइजा and she will provide the course and you can sign up with that. Absolutely, yeah, we do have a discount code जो सनैन ने हमें दिया था, and yeah, I'm happy to share it. If you need the code for that, just send us a message. अच्छा, next question है, do I need to find a broker to start my investment journey in stock market? देखिए, broker is like, broker provides you window into the equity investing. It's just a window through which you execute your the
I think the bigger question is why equity? What is your age? कितना रिस्क लेने को तैयार हैं आप? कितने अरसे के लिए आप इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? That is a bigger question to ask before approaching a broker. Because अगर आप इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन के बगैर जाएंगे किसी भी ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर आपको अपनी स्टोरी सुनाएगा, and that is something which is usually against your long term financial goals. उसका रीजन क्या है? I'll tell you. ब्रोकरेज इंडस्ट्री दुनिया भर में उसका जो अर्निंग मॉडल है वो कमीशन है. दैट कमीशन only occurs when you execute a trade. So it's a function of how many trades you execute. कि जितना ट्रेड करेंगे उतना उनका कमीशन बनेगा. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यही आपको नहीं करना. नाउ यू अंडरस्टैंडिंग कि क्यों जो आपको जो काम ब्रोकर के पास करने जाएंगी, और ब्रोकर का कोर अर्निंग मॉडल इज अगेंस्ट योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग. दैट इज द रीजन व्हाई ग्लोबली लोग ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करते हैं. लॉन्ग टर्म में एक इंडेक्स ले लेते हैं या मजमुआ ले लेते हैं कुछ स्टॉक्स का, और उसमें सिस्टमैटिकली हर लेवल पर डालते रहते हैं. हर महीने के एंड में, हर वीक के एंड में, फ्राइडे को सेकेंड हाफ में कुछ बाय करते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम. वक्त आपका दोस्त है, जितना भी क्राइसिस है उससे आपको वक्त निकालेगा. सो फोकस ऑन प्लेइंग ऑन टाइम. टाइम पे प्ले करें. अगर शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो उसकी एक अलग साइंस है, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम यू टू लर्न बिफोर यू एक्चुअली मास्टर इट. अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, less than 5% or 4% end up really mastering that, and it requires a lot of training and mental understanding to really garner that interest. So if you are a coding person, तो it's better कि आप systematic across time उसको diversify करें and हर level पे लेते ही चली जाएं. That's a better approach, and you need to answer that question before you reach out to the broker. Right. So the next question is, again आपने ETFs को mention किया. So someone has asked what is better? So should I start with mutual funds or ETF or buy stocks directly? So what do you suggest on that? So it depends on your preference. So अगर आप ETFs में invest करें, let's say you want to invest for like 15 years and you want to develop an equity side of your business या equity side of the portfolio कि जो stock market में invest करें. Now आपके पास तीन options हैं. एक है आपके पास म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स होते हैं जो अराउंड 2% आपसे वो लेते हैं, मैनेजमेंट फी लेते हैं उसको मैनेज करने की, एंड देन फ्रंट एंड लोड भी होता है उसका. सो ये जो डिडक्शंस है ना, ये डिडक्शंस आर बैड फॉर योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द पोर्टफोलियो. सो व्हेन यू गो टू द ETF में ये फीस कम होती है, नंबर वन. अगर ETF में आप लेते हैं तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल विंडो, रियल टाइम, कभी भी मार्केट में. सही है. सो लिक्विडिटी आप अरेंज कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड में आपको अगेन वो आज डालेंगे तो डे एंड पे आपको वो स्ट्रक्चर करके आपके पैसे दे देंगे. बट द फीस इज इम्पोर्टेंट. सो जो फीस, अगर मैं लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो डेवलप कर रहा हूं तो दुनिया भर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ETF इसलिए मशहूर हुए हैं कि उनमें लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड ETFs आप डायरेक्टली रियल टाइम बाय कर सकते हैं और आप लंबे अरसे के लिए उनको बाय करते रह सकते हैं. इसलिए लोग ETFs में स्ट्रक्चर करते हैं. नाउ डायरेक्टली गोइंग टू द एक्विटीज भी आप मुख्तलिफ एक्विटीज का मजमुआ या पोर्टफोलियो बना के अपना खुद एक तरह का पोर्टफोलियो ETF बना सकते हैं. When you call it ETF, it's technically a separate term, but उसमें भी एक मजमुआ होता है मुख्तलिफ स्टॉक्स का एक मखसूस शरह से, तो वो शरह आप खुद भी बना सकते हैं. But sometimes it's difficult. It just gives you a little bit more interest and excitement over the short term if you do that. But over the long term, if you want to go for it, if you have that time, allocate that time. Do not buy one thing. So ETF brings a lot of discipline as well. कि आप ETF एक लेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल 15 स्टॉक्स ले लिए, अगर आप एक बटन दबाएंगे और एक ETF लाएगा. So with a lot of like with the ease of investing with a single button, you can buy 15 stocks. So ये थोड़ी आसानी है ETFs के अंदर. एंड लॉन्ग टर्म में अगर एक ये भी दिल दहलता है हर दिन मार्केट को देख के कि आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है 4% डाउन. ETF जनरली की वो डाइवर्सिफाइड होती है तो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, जो कि आपके लिए अच्छा है व्हेन यू आर लर्निंग और अर्ली स्टेज पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना. अगेन टाइम इज द की.
इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अदरवाइज आप काम छोड़ के, कोड छोड़ के, ये आपका पाइथन की विंडो नीचे गई और फोन से मार्केट देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं यार अब क्या हो गया, तो सारा फोकस आपका हटके जो है ना, फंक्शन सारे मेथड भूल के आप वो इक्विटी मार्केट्स में लग जाएंगे वरना। Right. Absolutely. And again, मैंने खुद recently अभी कुछ investments किए हैं stock के अंदर, and what I've learned from my dad and other people who have seen investment is that they do not look at it daily, because if they are doing it long term, they would just not, जैसे हमारे यहाँ लोग buy and sell multiple transactions per day कर रहे होते हैं. So when I started it, my father advised me that do not do that. Buy something for long term and just forget about it, and do not just take a look at the portal every day. And especially when I bought and after that flood came, so a lot of things crashed. So he told me specifically that don't look at it, just forget about it for now. बिल्कुल सही है। So Kadir का question है कि he wants to know कि do you have any thoughts on cryptocurrencies or the investments that people are doing on them? I think crypto has been a popular asset class. अभी recently तो काफी अताप आया है crypto के ऊपर. So there are two sides of it, crypto. One is a regulatory side. So in Pakistan, regulator has a clear-cut stance. State Bank and SECP has a clear stance on that. That's illegal. Don't try to put your money into a highly risky asset class. The one interesting thing जो कि कोई नहीं आपको समझाता when they talk about crypto, it's actually not crypto. It's actually leverage. So leverage kills you, not crypto. So if we talk about the stocks, बहुत से ऐसे stocks हैं जो कि 1100 से 10 रुपए पे आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिर के, मतलब उन्होंने क्रिप्टो से ज्यादा बुरा हाल किया है इन्वेस्टर्स का। लेकिन तबाह आप जल्दी क्रिप्टो में इसलिए हो जाते हैं कि उसमें आप 20 गुना मार्जिन या लेवरेज लेते हैं। मतलब 100 रुपए पे अगर आप 10 गुना लेके 100 रुपए पैसे लेके जाते हैं और 1000 रुपए की क्रिप्टो लेकर आते हैं, और अगर वो 10% गिर जाता है तो आपका अकाउंट उड़ जाता है, बिकॉज जो 100 रुपए कैश था वो सारा वाइप आउट हो गया, 10% था, बिकॉज इट वाज 10% ऑफ द 1000 रुपीज एंड द स्टॉक और क्रिप्टो वेंट डाउन बाय 10%, एवरीथिंग वॉश्ड ऑफ। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में एज अ रूल ऑफ थंब, अगर आप अच्छे लीडर्स क्रिप्टो में जनरली ग्लोबल मार्केट्स के हैं, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, अगर 4 to 5% रखते हैं वो डाइवर्सिफाई अक्रॉस लाइक 20 years, that's one way of looking at it. But in Pakistan it's not legal right now as of now. Abhi final judgment aana baki hai, but it's right now regulator has given their stance. So a regulatory perspective on one side, and then globally if you look at the crypto assets, and when you look at the leaders even in the stock market, focus on the leaders, un company pe focus kare jo ki drive kar rahi hai economy ko. So if you invest for long term in that, so you're generally low risk within the equity, you are in the low risk quadrant. जी fine. Right, thank you. So Sara Hassan का question है Facebook पे कि what do you think about the future of real estate in these times of economic crisis, especially in Pakistan here? I think within the real estate आपको 2-3 जगह, because सारी real estate एक ही तरह परफॉर्म नहीं करती, because sometimes आप बोलते हैं रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न है, तो लोग कहते हैं हम एक घर पे बैठे हुए एक इलाके के अंदर 10 साल में तो वो नहीं इसकी प्राइस बढ़ी, बिकॉज इट ऑल्सो हैपेंस, जिस तरह कंपनी की एवोल्यूशन होती है इसी तरह इलाकों की एवोल्यूशन होती है। सो सोसाइटीज ग्रो होती हैं, अर्बनाइजेशन होती है। सो व्हाट आई कॉल देम ग्रोथ रियल एस्टेट्स। सो ग्रोथ रियल एस्टेट्स क्या होती हैं, मतलब वो इलाके जो जहां अर्बनाइजेशन शुरू हुई है, प्लॉटिंग होना शुरू हुई है, एंड दे आर ऑथेंटिक एज वेल, और वहां पे आप देखते हैं कि मेन रोड्स बढ़ रही हैं, प्लस उनकी आर्टरीज या उनकी जो लेन है वो ऐसी है कि जहां एक मेन हाईवे करीब करीब है। सो दीज थिंग्स गिव यू इंडिकेशन कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन तेजी से होना शुरू होगी। वहां पे आप देखते हैं कि वो दे आर क्लासिफाइड एज ग्रोथ रियल एस्टेट मार्केट, जहां पे आप देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ होती है ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होते जाते हैं, घर बनते जाते हैं, घर बन जाते हैं, सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, देन द मार्जिनल ग्रोथ रेट लाइक slows down in the markets. So what actually happens within the real estate, it depends कि आप किस तरह की रियल एस्टेट को देख रहे हैं। अभी अगर तो रियल एस्टेट को पाकिस्तान में मजीद चैनलाइज किया गया, इसको लीगल एम्बिट में लाया गया इसके रिटर्न्स को,
तो रियल एस्टेट में पैसा, बिकॉज अगेन जिस तरह मैंने बताया था कि चूंकि ये अकाउंटेड फॉर नहीं होता तो यहाँ बहुत ज्यादा ब्लैक मनी आ जाता है और वो व्हाइट हो जाता है. So the moment it's accounted for, the inflow of money in real estate will reduce. So when the inflow will reduce, the demand will go down. So when the demand will go down for the real estate, that is where the prices will like remain stuck and not grow at an astronomical rate. But generally when the economy grows, the prices move up. उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस इलाके में रियल एस्टेट लूंगी, कहाँ लूंगी रियल एस्टेट. That also is one factor that you need to look at. So no fixed answer. You need to look at these 2 to 3 important questions so that you can better understand कि मुझे रियल एस्टेट अच्छी है लेकिन कहाँ अच्छी है. एक वो फ्लैट जो कि शहर के मिडिल में आपने मार्केट प्राइस पे ले लिया और आप चाहेंगे कि वो डबल हो जाएगा, that is going to be difficult right now. Right. Absolutely agreed. So I do have a lot of questions, but in, respecting your time, I'm just going to ask 2 more. Sure. One question is that Ali is asking that if I want to buy ETF, what is the first step? First step is to open an account and at any brokerage house, and then second step is to remain committed to your objective, because broker आपको ये बोलेगा कि आप ETF छोड़ें सर, आप ये 2-3 स्टॉक्स ले लें छोटे छोटे से और आप इसको जमा कर लें अपने पास. सेकंड स्टेप इज रिमेन कमिटेड टू योर कॉज. देन आपको ETFs की एक लिस्ट मिलेगी ब्रोकरेज हाउस के टर्मिनल के ऊपर, एंड आप उसको कलेक्ट करें, डायरेक्टली बाय करें और एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और बाय करते रहें हर लेवल्स के ऊपर ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म. सिंपल. Say, and can you maybe help him with a few names कि वो कौन से brokerage houses हैं? Well, I think they can choose any of the top houses, but अगर आप इन्वेस्टर्स लाउंज के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हैं तो हमने कुछ हाउसेस सिलेक्टेड क्यूरेटेड रखे हुए हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म की स्कॉलरशिप भी देते हैं. सो 6 मंथ्स की स्कॉलरशिप भी वो ऑफर करते हैं आपको. सो इफ यू गो थ्रू देम तो आपको 6 मंथ्स की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी. यू कैन sign up for free and probably connect with the customer support. They'll help you out with that. ठीक है, that's fantastic. Thank you so much. And last question that I'm asking, again, we have already discussed this, but for the sake of clarity, because I think क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें discuss की हैं, तो people are unable to make sense out of it. So Saima Kareem is saying that I've joined a bit late, so I'm not sure if you have covered it. What's your point of view about people putting their money in national certificate schemes through government or national bank? So do you think it's a good investment? देखिए, I know you have talked about it. अभी कुछ देर पहले बताया था. ये देखिए, आपको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स आपको between 2.5 to 3% real rate of return देते हैं. I'm talking about real return. इन्फ्लेशन को माइनस करें, real rate of return बता रहा हूँ मैं. अगर आप और थोड़ी उनकी टॉप टियर की स्कीम्स में जाएं तो आपको 3 से 4% रियल रेट ऑफ रिटर्न देंगी. सो इफ यू वांट टू ग्रो योर वेल्थ, रियल टर्म्स में 4%, नॉमिनल टर्म्स की बात नहीं कर रहा. नॉमिनल टर्म्स में 14-15% आपको रिटेट सीखेंगे, लेकिन आपको हमेशा रियल टर्म्स में सोचना है अपनी वेल्थ को. जो अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो 3 से 4% की शरह से ग्रो करेंगे. हाँ, ये बेहतर है बैंक की सेविंग स्कीम से, बेसिक सेविंग स्कीम से. ये बेहतर है फिक्स डिपॉजिट से जो बैंक ऑफर करते हैं. ये करीब करीब है आपके लॉन्ग टर्म गोल्ड में रियल रेट ऑफ सेविंग जो आपको रिटर्न दे रहा है उससे करीब है. ये करीब करीब है आपके PIB रेट से. दैट इज व्हाई ये आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं 2 से 3% स्पेशल सेविंग में, एंड देन यू मूव अप तो 3 से 4% भी हो सकता है अगर आपको जो नेशनल सेविंग के टेबल में जाते हैं. Right. ठीक है जी. One more person, they are very persistent. Please, मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ. So they are asking that should I wait for the market to crash so I can buy at low price or buy at every stage? Okay, so systematically when you wait for the market to crash, so हर level आपको ऐसा लगता है कि अभी crash नहीं हुई है. So until and unless आपकी hopes crash हो जाती है, market recover हो जाती है, and that's what happens usually. So अगर आप सब, क्योंकि बहुत दफा होता है कि मैं low buy करना, आप question, you ask the right question, you will get the right answer. सही सवाल पूछेंगे, सही जवाब मिलेगा. सही सवाल ये है कि मैं कितने अरसे के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी एज क्या है, मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ. अगर इनके जवाब मिल जाएंगे और आपका अरसा लंबा है लॉन्ग टर्म, तो हर लेवल आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दिखेगा. बिकॉज इनिशियल ईयर्स अगर मार्केट नीचे है तो वो आपके अच्छी अक्यूमुलेशन ईयर्स बन सकते हैं. बिकॉज रियल आपको, क्योंकि विड्रॉल 5 साल 7 साल के बाद करना है, तो अच्छा है कि मार्केट आपको नीचे मिले रादर कि आपको ऊपर मिले, टेक्निकली स्पीकिंग, लॉजिकली जी. तो हर रेट पे बाय करें आई वुड से, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपका
टाइम का पर्सपेक्टिव और रिस्क का पर्सपेक्टिव क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है। ठीक है, got it. Thank you so much, Bakar. Thank you so much for your time. Again, whoever is listening, if you are a member of Women in Tech PK and or an alumni of Code Girls, we have a scholarship code from Investors Lounge so that you can access the courses there and learn more about it. Other than that, I think it was really interesting discussion, and to be very honest, I was also very skeptical when I started thinking about investment, and your money mindset, I think, was the first course that I took, and I also tweeted at you that I really enjoyed it. And Thank you. then I also took the first step. I was telling Sanen also that I took my first investment step after taking a look at your books, because I thought that And it was really amazing. fans, we are proud of you, the way you are like teaching and guiding everybody. So हम आपके fan हैं, so to you about it. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate your time. I'm also going to share the recording with you separately if you want to put it on your YouTube or anywhere. And I think that's all. Any last words? Thank you so much, Faiza. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And then again, focus on value your time. Valuing time is very important. एक asset है जो कि आपको मिल गया है. हम दूसरों के assets या fixed income as an asset को देखते हैं, real estate को देखते हैं, जो अल्लाह ताला ने दे दिया है उसकी कोई अहमियत नहीं करता. बिल्कुल, absolutely. Thank you so much, Bakar. Have a great day. Allah Hafiz.